Welcome, friends. Very good evening. In this special webinar, we are welcoming you all. It's my proud privilege to organize this special webinar. We have a great personalities with us. CA Vivek Bhai Shah, a practicing chartered accountant from Mumbai. He is very well known in the all the youngsters of the Mumbai. He is a very famous also. Apart from routine practice, he is a multi-talented and showing us how to present or presentation skill basically. Apart from what we have learned in the Microsoft PPT kind, so there are multiple solutions available or new generation presentation we can say through various softwares. So Vivek Bhai is also a trainer in our various institute as well as income tax department, police department, also a CBI office is presented, including EOW also he is presented a case. He is a very famous chartered accountant in around Mumbai. We have one more personality with us, CS Ashish Bhai Bakliwal, a self-made person, started own practice from the first generation CA and came from Rajasthan, the root from Rajasthan. He is also a well-wisher of us, and he is now training or teaching basically first generation chartered accountant on how to develop a CA practice. We have today's our faculty speaker, guest speaker, CA Premlata Daga madam. Madam is very famous in the IRS association or IRS field basically. Is a trainer also in a NADT, National Academy for Direct Taxes at Nagpur. Also, apart from there, she is taking multiple session at various institute as well. Recently, also in this lockdown, many times she has taken session at WRC, our Western India Regional Council, for members as well as students. So we welcome you all. Apart from this, would like to mention here that this special webinar on the valuation of unquoted shares, we have with us around 50 to 60 IRS officer with us who is taking benefit of this knowledge sharing session. We are recognizing presence of all without taking individual name. So it's our proud privilege to have you with us on this evening. So without taking much time, would like to now request CA Vivek Bhai Shah to welcome address for this special evening on the special webinar of this valuation. Over to you, Vivek Bhai. Thank you so much, Virag Bhai, for inviting me to deliver the welcome address for today. So, to all participants, a very warm welcome, and I'm sure all of you all are making the most use of the time during this lockdown by attending these webinars and by upgrading your knowledge. It is always said, my friends in the army and the navy tell me that if you are not fighting a war, you might as well sharpen your weapons during that time. So this is exactly what I believe each one of us is doing, trying to upgrade the knowledge and skills that we already have, and we're trying to associate with like-minded people and attend and upgrade our knowledge. So, and having said that, this is a beautiful initiative which has been taken up by Connect Easy and CAs of Mumbai to spread knowledge during this lockdown. Coming to the topic for today, today's topic is such that this has always been a point of dispute. This has always been a point of contention between the assessee and the officer. And since I recognize the presence of a lot of officers, both junior and senior officers over here today, so there's only one thing that I would always like to say is that this point is such where both parties have to try and arrive at an amicable solution as far as understanding the valuation of shares is concerned. And as I always say, tali kabhi ek haath se nahi bachti. People have exploited this. People have shown extremely high premiums. People have used this as a modus operandi to launder money through various companies. But having said that, but there are a lot of genuine cases, considering the Startup India initiative, considering that Make in India has taken so much steam right now, that these issues are only going to increase with time. And the amendments came in actually quite late in the day. But having said that, I think we have a wonderful faculty and a guest speaker for today. I'm sure she will be able to address all our concerns with this.
Thank you so much for inviting me to give the welcome address. Thank you, Vivek Bhai, for your kind words and guidance. Now, would like to request Ashish Bhai to have a few words, and after that, formal introduction of Premlata ma'am. Over to you, Ashish Bhai. Yeah, thank you. I'm being privileged to be part of this forum now. It's a very apt topic and very crucial at this stage, because we all know valuation is not an objective thing. It's a very subjective thing. It's been said that it's an art to how to value things. But I want to sell myself. How I'm selling myself, I may price myself a crore rupees. You may price myself 50 lakh rupees. But there is something between. There are some methods to be used to reach at an amicable solution, as talked about Vivek Bhai, because evolution is very difficult topic and very different topic to understand and to explain as well. It's a matter of negotiation also. Like buyer and seller is selling, some person is selling his company, his idea is very great, then he may ask for the value which is exorbitant, seem to others it is very exorbitant, but it may be valued. Like Facebook, we have been, it's more valued than our normal companies in India which are working for last 100 years. So this is the way we have to find out solutions, and I believe, and I firmly believe that Premlata madam will do justice to the topic and make us all understand what valuation is and how to get a reasonable valuation range, so that it is beneficial for businesses, and it should not be the tool of laundering money as well. So there should be always be a balance between both of these things, because there are people who misuse anything you provide them. You provide them food, they also misuse that thing also. So there are people, so we have to find out the solutions that it is the same time it is not misused, and at the same time it is been not be harassed to the businesses, or harassment to the normal public or normal chartered accountant or normal people. With this, I'm privileged now to introduce today's speaker, CA Premlata. She is qualified chartered accountant in 2012 at the young age of 22. She is from then she is at the age of 23. She started teaching at NADT, National Academy of Direct Tax. It's a very young age to start teaching at that age. It's very great. She is one of the youngest visiting faculty of NADT, and so far has taught financial accounting to 7 batches of IRS officers. She has conducted 500 plus sessions on financial investigation through Tele at NADT, and even Direct Tax Regional Training Institute, Bhopal, Chandigarh, Bangalore, and Baroda for officers from assistant commissioners to joint commissioner level. His profile is too long. I request. She has been nominated member of Direct Tax Committee of WRC. She nominated member of CP Committee of WRC. She was awarded Woman of Substance Award by CFest on the event of Times of India. She is finalist at Celebrity Beauty Pageant 2020. Had been the youngest contributor to the book of investigation technique for income tax officers, published by CVDT. Your profile is so long, madam. You are it's at the young age you have achieved a lot. I believe everybody will be get benefit from your presence here. Now I welcome you. Now it's yours. Thank you so much, sir. Thank you you, so much. Ashish Bhai. I just want to add 2 or 3 lines. Because of that achievement and other things, that qualities, and trained to so many officers as well, I always call Premlata ma'am. So in the discussion during the day also, ma'am told, don't call me as a ma'am. Premlata is a good, like you call me by my name only. So because of this achievement, ma'am, there is a respect for you. So we all call you ma'am. Otherwise, we obviously as a peers, and we can call by name as well. So with these words, would like to request now, ma'am, to start our today's session. Over to you, ma'am.
Thank you so much, Viraj sir. Firstly, for inviting me here, and secondly, to Ashish sir for a wonderful introduction. Sir, आप उसको cut short कर सकते थे. इतना was not required. And Vivek sir and Ashish sir, you have given a very apt introductory remarks because it sets the day, मतलब I mean presentation शुरू करने के पहले एक बड़ा ही अच्छा background आप लोगों ने create कर दिया है कि अभी इसमें बहुत सारी loopholes भी है, बहुत सारे लिटिगेशंस भी है और 2017-18 के अमेंडमेंट है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है अभी तक. So I'll just try and do my best so that I can do justice with the valuable time of approximately 135 people who have joined so far. So let's start with the presentation without taking much on the introductory part, right? Thank you so much once again. Let's start. All right, firstly, I'll just give a quick introduction of the sections जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ये जो sections आज हम discuss करेंगे उसमें section 56 to 7 है. ये सारे sections mostly other sources वाले head से आते हैं. And I understand कि all those who are attending this session have a basic understanding about these few sections. 56 to 7 ये जो सेक्शन है ये इंडिविजुअल एंड HUF को लगता था और ये मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता था. ये अक्टूबर 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ और 31 मार्च 2017 में ये खत्म हो गया था. ये खत्म इसलिए हो गया था क्योंकि फिर 56 to 10 आ गया था जो हम बाद में बात करेंगे. उसके बाद जो पहले सेक्शन था वो 56 to 7 ही आया था. वो फर्म एंड कंपनी विच इज क्लोजली हेल्ड उनको लगता था और ये शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी में जो ट्रांजैक्शन होते थे उसके लिए था. ये 1 जून 2010 आया था एंड 31 मार्च 2017 में चला गया था. दैट मीन्स दीज टू सेक्शंस आर रेलेवेंट ओनली अप टू 31 मार्च 2017. फिर 56 to 7 भी है जो कंपनी एंड क्लोज विच आर क्लोजली हेल्ड कंपनीज में लगता है और ये लगता है जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है. ये दोनों बेसिकली लगता है जब कोई इंडिविजुअल HUF फर्म या कंपनी अपने शेयर्स बेचती थी और ये लगता है जब कंपनी फ्रेश इश्यू शेयर करती है. ये अभी भी रेलेवेंट है. दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर on 1st April 2013 and now we have 56 to 710. This section was introduced in order to ये जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है इसको और वाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन आया था. इसमें मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी सब कवर हो जाता है. सारे पर्संस कवर हो जाते हैं, ट्रस्ट हो या एनीथिंग, एवरीबॉडी इज गेटिंग कवर्ड अंडर दिस 56 to 10. दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2017. अब ये पहले सवाल पे डिस्कशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लॉज या सेक्शन क्यों इतना रेलेवेंट है. इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड. When I was doing my own articleship in the year around 2009-10, उस समय ऑडिट करते वक्त एक कंपनी की बैलेंस शीट में 5 लाख का पेड अप कैपिटल इंक्रीज हुआ था और उसके साथ में अप्रोक्सीमेटली 25 लाख का शेयर प्रीमियम भी आया था. जबकि उस कंपनी को देख के वी कैन वेरी मच मेक इट आउट कि 25 लाख की प्रीमियम देने की कोई जरूरत नहीं थी. तब मैंने मेरे जो प्रिंसिपल है जहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप की थी उनसे मैंने बोला कि ये जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ है ये जस्टिफाइड नहीं है और मुझे लग रहा है कि ये टैक्स होना चाहिए. तब उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता, एक्ट में लिखा होना चाहिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द सेक्शंस. आपको कुछ भी लगता होगा या हमें लॉजिकली कुछ भी लगता होगा बट लॉ एंड लॉजिक मे नॉट गो टुगेदर. So in this particular section, first we will discuss about what is exactly written in the act, how it is interpreted, then what is missing in the act, how it is creating problems for various assessees, and what amendments are expected, what are still not covered in these particular section, keeping still some possibility of tax planning available, which otherwise should have been covered by these amendments. और मुझे हमेशा से लगता था कि ये अमेंडमेंट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन anyways now it is there. So it is very important for all of us to first understand this and to apply this amendment and these rules very cautiously because बहुत ज्यादा subjectivity involved है. ये जो सारे changes हुए हैं majorly 2017-18 में हुआ है और अभी तक 2017-18 या उसके आगे बहुत ज्यादा इनकम टैक्स के केसेस हुए नहीं है.
जितने केस लॉज मुझे मिले वो जनरली ट्राइब्यूनल रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल ओपन फॉर लिटिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन. सो आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर. Whatever I'm going to discuss today here is mostly related to what my opinion and whatever I've studied so far. Certainly there is a lot of subjectivity involved, and some of you may have a contrary view and you may be correct also. तो अभी जिस सेक्शन पे हम बात करेंगे इसमें बहुत सारे ओपिनियन पॉसिबल है एंड सारे ओपिनियन सही हो इसकी भी पॉसिबिलिटी है. So unless and until there is clarity or a good judgments or an amendment or clarification by the department, these sections are certainly going to remain open for a lot of litigations. Now the first one, section 5627B. ये जो section है ये तब लगता है जब where a company not being a company in which the public are substantially interested receives in any previous year from any person being a resident any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such shares, the aggregate consideration received for such shares as exceeds the fair market value shall be deemed to be the income in the hands of the company. यानी ये वाला जो सेक्शन है वो पर्टिकुलरली तब लगता है जब कंपनी शेयर्स इशू करती है. तो अगर सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो अगर एक कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसे 50 रुपए में इशू किया गया है, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 30 रुपीज होना चाहिए. और जब हम फेयर वैल्यू कहते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द फेयर वैल्यू कैलकुलेशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स. सो जब फेयर वैल्यू अगर 30 रुपए है तो उस कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा 20 रुपीज का. क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेचा है. इसका मतलब कंपनी को 20 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है जिसके बदले कंपनी ने कुछ नहीं दिया. तो इसीलिए 20 रुपए का टैक्स लगेगा इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है. दिस पर्टिकुलर क्लॉज विल नॉट अप्लाई if the shares have been received by a venture capital undertaking from a venture capital company or a venture capital fund. दूसरा एक और exception है by a company from a class or classes of person as may be notified by the central government in this behalf. अब इसके लिए एक और explanation आ गया था कि fair market value कैसे calculate होगी. It will be higher of the two. Higher of the two में क्या आ गया है? As may be determined in accordance with the method prescribed, that is our rule 11 UA, and as may be substantiated by the company to the satisfaction of the assessing officer. But इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसे हम fair value मानेंगे, और अगर fair value से ज्यादा कंपनी ने कुछ लिया है तो उस पे कंपनी के हाथ में टैक्स लग जाएगा. ये सेक्शन के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि हमें थोड़े क्लैरिफिकेशंस चाहिए. सो नाउ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेक्शन दैट वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड. सबसे पहला क्वेश्चन, इज दिस सेक्शन एप्लीकेबल व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट? अगर कोई नॉन रेसिडेंट हमारी कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो क्या उसको ये सेक्शन लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं. This section is not applicable if the amount is received from a non-resident because section में specifically लिख दिया गया है कि resident से जब मिलता है तभी ये section लगेगा. Second question, is this section applicable when preference shares are issued? The answer is yes, because section में जो word use किया गया है वो है share, and share words include equity as well as preference shares. Valuation पे हम बाद में जाएंगे, पहले basic questions को समझ लें. What are the exceptions? यहाँ पे जो हमने सेक्शन में पढ़ा था, इस सेक्शन के लिए जो एक्सेप्शन है वो है वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग एंड वेंचर कैपिटल कंपनी. यानी जब एक वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग शेयर रिसीव करती है फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड से, तो ये रूल उसको लिए नहीं लगेगा. यानी उस केस में प्रीमियम अगर ज्यादा भी है तो भी वो टैक्स नहीं होगा. And any class or classes of persons as may be notified by the central government in this behalf. Obviously, after reading these two things, we would like to know कि venture capital undertaking and fund होता क्या है, और क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई क्लास नोटिफाई करके रखी है क्या जिसको इसे एक्सेप्शनल रूल में डाल दिया गया है. So the answer to these two questions are here. When we say that venture capital undertaking, company and fund को ये particular section नहीं लगता, तो इन सब का मतलब क्या होता है? Venture capital company, fund
एंड अंडरटेकिंग को डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 23B FB ऑफ सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 क्लॉज 23 FB में जो इसकी डेफिनेशन है वो अंडरटेकिंग अगर इस डेफिनेशन में आती है तो उनके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन में एग्जेम्पशन, उसमें शायद सब सेबी रजिस्ट्रेशन की कुछ बात कही गई है। दूसरा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक इशू किया है जिसके वजह से ये सेक्शन कोई क्लास और क्लासेस को नहीं लगता? तो इसका जवाब है हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन नोटिफिकेशन इशू किया है 24/2018 dated 24th May 2018. Notification number is 364E, which says कि कोई जो स्टार्टअप्स है जो सेक्शन 80 IAC के डिडक्शंस के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको अगर कोई शेयर इशू करना है और अगर उस पे प्रीमियम कलेक्ट किया गया है तो सेक्शन 5627 उसको नहीं लगेगा। Which are the prescribed methods for determination of a fair market value of shares? Fair market value of shares कैसे निकलेगी ये भी हमारे एक्ट में डिफाइंड है, और जब कंपनी कोई शेयर इशू करता है तो एक्ट ने उसे दो मेथड अलाउ किए हैं। वो कहते हैं अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी कोई भी इक्विटी इशू करता है या प्रेफरेंस इशू करता है तो उसके बेसिकली इक्विटी इशू प्रेफरेंस के लिए एक अलग रूल बना गया है। इक्विटी इशू करेगा तो उसे नेट असेट वैल्यू मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड अलाउ है, यानी ये दोनों मेथड में से कोई भी मेथड वो सिलेक्ट करके अपनी कंपनी के शेयर को वैल्यू कर सकते हैं। नेट असेट वैल्यू मेथड क्या होता है? असेट माइनस लायबिलिटी, इसको रूल 11 यूए में डिफाइन है जो भी हम देखने वाले हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का मतलब होता है अगर कोई कंपनी है जो आज नई है और उससे अभी बहुत कुछ नहीं किया है, इसका मतलब उसके प्रेजेंट नेटवर्थ बहुत हाई नहीं है, लेकिन अगर कंपनी के पास में फ्यूचर अर्निंग का पोटेंशियल है तो जो वो इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं टेक्निकली वो फ्यूचर इनकम के लिए होते हैं। तो इस पर्टिकुलर मेथड में फ्यूचर कैश फ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू में लाया जाता है। मतलब अगर कंपनी सोचती है कि आज से 2-3 साल के बाद में वो 50 करोड़ 100 करोड़ या 150 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, तो वो 50 100 150 करोड़ के रेवेन्यू की आज की कीमत कितनी होगी, और आज की कीमत निकालने के लिए उसके पास एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज समथिंग व्हिच टेक्स केयर ऑफ द रिस्क एंड द जो एक रिस्क फ्री रिटर्न प्लस जो रिस्क लेने के लिए बीटा कंपोनेंट होता है उसके बेसिस में 12 से 15% अप्रोक्सीमेटली इज एन एवरेज, उतने रेट के बेसिस पे उसको आज की कीमत पे लाया जाता है और उसके हिसाब से इस कंपनी की आज की कीमत निकाली जाती है जो उसके पोटेंशियल के बेसिस पे निकली है। दोनों ही मेथड बहुत ही लॉजिकल है। पहले वाले मेथड कंपैरेटिवली इजी है, दूसरा वाला मेथड इज लिटिल टेक्निकल बिकॉज आप फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट करने के लिए आपको उसका प्रॉपर कैलकुलेशंस भी लगेंगे। We will discuss about discounted cash flow method and the litigation involved into it. Net asset method में litigation काफी कम है, लेकिन DCF method में काफी litigations है and वो बहुत ही obvious reason के वजह से है कि आज अगर मैंने कोई future projection किया है और कितना भी ध्यान रखते हुए किया होगा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोजेक्शंस फ्यूचर में जाके सही भी हो, लेकिन उसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि मैं आज गलत हूँ। अगर मेरे प्रोजेक्शन के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग है, उसके हाथ पैर है और वो कैसे डिराइव हुआ है, and I can justify it, then my projection should be considered. We'll discuss on this particular topic, this particular litigation matter with some case laws and what have been the judgments so far on this DCF calculation method. रूल 11 यूए बड़ा आसान सा है ऐसे अगर समझे तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रूल 11 यूए दो टाइप के हैं। एक टाइप वो है जब कंपनी शेयर इशू करती है उस समय रूल 11 यू अलग तरीके से है, और जब एग्जिस्टिंग शेयर को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल करता है उस समय रूल 11 यूए बदल गया है। रूल 11 यू AA हो गया है। तो that we will discuss later. Presently, if a company is issuing shares,
then if they want to follow net asset method, उसका calculation जो होगा वो rule 11UA के हिसाब से होगा, clause 2, उसमें कहा गया है asset minus liability multiplied by PV divided by PE. इसके सारे components को we will just quickly understand. Asset represents all the book value of the assets in the balance sheet as reduced by any amount of tax paid or as deduction or collection at source or as an advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as a refund under the Income Tax Act and any amount shown in balance sheet as assets, including the unamortized amount of deferred expenditure which does not represent any value of asset. सिंपल सी बात है, असेट साइड में जितने भी असेट होंगे सब बुक वैल्यू पे होंगे और उसमें जितना भी टीडीएस या एडवांस टैक्स पे किया होगा उसको हम घटा देंगे. और अगर कोई ऐसा असेट है जो जैसे कि गुडविल हो गया या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर है, like if you have any foreign exchange differences which has not yet been completely written off, उस टाइप का अगर कोई item है which actually does not represent any asset, then technically those assets are required to be deducted. That means उसको asset नहीं मानेंगे for the purpose of this particular calculation. L stands for liability. Again, the book value of liabilities, but excluding paid up capital, share capital, amount set apart for undeclared dividend. अगर declared dividend है तो वो liability है, लेकिन अगर कोई amount आपने अलग से रखा है undeclared dividend के provision बनाने के लिए तो उसे आप liability नहीं मानेंगे. Reserves and surplus, provision for taxes, provision for unascertained liabilities and contingent liability. मतलब जितनी भी liabilities ascertained नहीं है और declared नहीं है in case of dividends, then उसको आप liability नहीं मानेंगे और उसमें आप liability को book value of liability से हटा के उसके बाद इस calculation के लिए use करेंगे. PV का मतलब होता है paid up value of such equity share. Such equity shares का मतलब है such यानी जो shares आप बेच रहे हो. तो अगर कोई कंपनी के पास में 100 इक्विटी शेयर्स, आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल नंबर्स सो दैट वी अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड. अगर कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल इज 100 इक्विटी शेयर्स एंड आउट ऑफ विच ओनली 40 इक्विटी शेयर्स और दिस इज कंपनी इज इशूइंग फर्दर 40, तो अगर कंपनी ये पेड अप इक्विटी शेयर्स लेगी तो वो 100 का लेगी एंड डिवाइडेड बाय दिस टोटल अमाउंट. अगर कोई कंपनी में पार्टली पेड अप शेयर्स है तो उसका एडजस्टमेंट्स यहाँ पे रहेंगे. अभी वैसे कोई बैलेंस शीट में पार्टली पेड अप शेयर्स हमें नहीं मिलते, इसीलिए फॉर द टाइमिंग दिस प्रोबेबली मे नॉट बी वेरी रेलेवेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर रूल में, मतलब अगर कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है उस केस में जब हम कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालते हैं तब हमें असेट्स को रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है. उस टाइम पे हम असेट्स को फेयर वैल्यू पे नहीं लेंगे जब कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है. फेयर वैल्यू में लेने की जरूरत सिर्फ तब है जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल करता है. इस रूल के हिसाब से असेट्स विल बी टेकन एट बुक वैल्यू, लायबिलिटीज विल आल्सो बी टेकन एट बुक वैल्यू आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ ऑल दीज आइटम्स ऑलरेडी मेंशन्ड. इसे बहुत ही मैकेनिकली अडॉप्ट करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लगाना है. देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर रूल. ये रूल 11UA है फॉर वैल्यूएशन एज पर नेट एसेट मेथड. नाउ कमिंग टू द DCF. DCF मेथड जो है उसका एक हमें रिपोर्ट लेनी पड़ती है. तो DCF मेथड जिसमें प्रोजेक्शंस इन्वॉल्व है उसकी रिपोर्ट देने के लिए हु इज ऑथराइज्ड. थोड़े समय पहले तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर आल्सो ऑथराइज्ड टू इशू अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर DCF कैलकुलेशन, बट for all the unknown reasons we don't know why presently it's only limited up to merchant bankers. So as per rule 11UA2B Income Tax Act read with notification dated 24th May 2018, now only merchant bankers are authorized to issue valuation report as per DCF method for the purpose of section 5627B. Merchant bankers are very limited and they obviously come with a very heavy cost. So अब ऐसा है कि DCF method शायद बहुत ही limited companies use करें. Now, very important question, and since there are few IRS officers also in this particular session, we must understand it from both the sides.
whether the AO can disregard the method adopted by the assessee and carry out the valuation of shares using a different method. अगर assessee ने DCF मेथड यूज किया है तो क्या AO के पास में ये पावर है कि वो DCF मेथड को हटा के नेट एसेट वैल्यू मेथड से कंपनी की कीमत निकाले? इसके लिए we have a small write-up based on this particular case. In the case of Innovative Payment Solutions Private Limited, the Bangalore Tribunal addressed the issue on the application of DCF methodology and the powers of the AO to inquire into it. ये जो बात है ना कि DCF हटा के हम नेट एसेट लगा सकते हैं कि नहीं, this is always a question that I faced during the assessment time. इसमें जो बात कही है, it's very relevant कि in the said case, the assessee could not conclusively establish that the projections used for DCF valuation were prepared scientifically. The tribunal referred to the technical guide on share valuation by a research committee of the ICI, wherein it was stated that the DCF value is good as the assumptions used in developing the projections. And these projections should consider various factors affecting the business. The tribunal held that if the assessee has opted for the DCF method, the AO cannot disregard it and adopt another method. But however, the AO is well within his rights to examine the methodology adopted by the assessee and the underlying assumptions, and if he is not satisfied, he can challenge the same and suggest necessary modifications. इसका मतलब DCF मेथड लगा देने से और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देने मात्र से काम नहीं होगा. अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी DCF मेथड को यूज करके शेयर की वैल्यूएशन करती है और वो DCF मेथड में प्रोजेक्शंस है, तो it will be the responsibility of the assessee to prove that the calculation is based on some scientific reasoning or there is some logic behind the calculation. अगर उसके logic satisfactory नहीं है and it doesn't look like to be correct and the assumptions are not correct. I mean, there are two different things. Assumption at the time when the valuation was done and उसके बाद अगर situation change हो गई, which cannot be foreseen at the time of valuation, तो बात अलग है. लेकिन जब आप वैल्यूएशन कर रहे थे तब अगर आपका वैल्यूएशन लॉजिक सही बैठता है तो आप DCF मेथड को कंटिन्यू कर सकते हैं. लेकिन अगर AO को ऐसा लगा कि उस टाइम पे जो ये लॉजिक या अजम्पशंस या जो भी इन्होंने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज की गई होगी, अगर वो सही नहीं है तो AO can definitely suggest modification if he find it necessary. इस पे और डिस्कशन करेंगे एक और केस के बाद. Decision of the Delhi Tribunal in case of Agro Portfolio Private Limited. It was held that since there was no possibility of verifying the correctness of the data supplied by the assessee to the merchant banker, the correctness of the result of the DCF method could not be verified. Hence, the AO had no option but to reject the DCF method and to go by the NAV method to determine the fair value of the shares. Again, इस particular case law में भी it is the responsibility of the assessee to provide with all the information which becomes the basis for the calculation of the DCF. अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और डेटा ही नहीं दे पाया तो असेसिंग ऑफिसर के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि उस मेथड को रिजेक्ट करे और NAV मेथड से निकाले. और बाद में यदि NAV मेथड से निकलेगा तो सर्टेनली NAV मेथड का जो आउटपुट आएगा वो DCF मेथड से काफी कम होगा, which will result into tax payment or addition in the hands of the company. Now, importantly, what are the rules valuation of preference shares? Preference shares अलग कैटेगरी के शेयर्स होते हैं, उन्हें इक्विटी जैसे ट्रीट नहीं कर सकते. इस पे बहुत सारे लिटिगेशंस होते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. So let's quickly read this. Rule 11UA2, which is specifically applicable for the valuation of shares for the purpose of section 5627B, covers only unquoted equity shares within its ambit, and there is no reference to the preference shares
Thus, the only method for determining the fair market value of preference share is given in Rule 11UA, Clause 1, Subclause C, which is reproduced here. The fair market value of unquoted shares and securities other than equity shares in a company which are not listed in any recognized stock exchange shall be estimated to be price it would fetch if sold in the open market on the valuation date, and the assessee may obtain a report from the merchant banker or an accountant in respect of such valuation. कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि डिपार्टमेंट कहना क्या चाहता है। इसमें ये प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं और कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है तो उसका वैल्यूएशन रूल 11UA सी में होगा, और सी में वो ये लिखते हैं कि अगर ये कंपनी ओपन मार्केट में बेचे, मतलब फर्स्टली यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोजली हेल्ड कंपनी, मोस्टली वी टॉक क्लोजली हेल्ड यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो वो ओपन मार्केट में जाके उसकी कीमत कैसे निकाल के लाएगी, और उसके बाद में भी इसमें लिखा है कि दे मे ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट। तो प्रेफरेंस शेयर्स के प्रीमियम पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आर 0% प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, तो रिडीमेबल एट अ वेरी हाई प्रीमियम, तो ये सारी चीजें इज स्टिल ओपन फॉर हेवी लिटिगेशन with no clarity presently in the act. Since today we are going to discuss on equity shares, we are not going to get into discussion on preference shares, but just with this particular side I would like to highlight that preference shares is more dangerous when it comes to tax planning as against equity, क्योंकि preference के बारे में अभी तक बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, और preference shares बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसे बहुत सारे तरीके से शेप और डिजाइन भी किया जा सकता है, which is altogether a different session I guess. So presently we'll not get into preference shares, but all those who are interested must invest time in understanding the different types of preference shares and how it is different and what angle you should take while dealing with these type of instruments. एक और केस लॉ, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स की वैरायटी पे है। इन केस ऑफ 2M पावर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, the assessee allotted, अब ये लोग सोचते भी इतना वाइल्ड है ना कि we should not always blame the department here। आप इस इंस्ट्रूमेंट की नेचर पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि the assessee has allotted compulsorily convertible preference shares at a premium, and the holders of these preference shares had the right to attend the general meetings of the company and vote on resolutions directly affecting their interest. The tribunal held that with the regards of the facts of the case, the nature of the issued share is actually that of an equity share and not preference shares. Technically तो इन्होंने जो issue किया है वो preference किया है, equity नहीं किया है. So it is important to decide based on the evidence if the share premium received is for equity shares to be issued later or for preference shares issued now. If the premium received is mainly for conversion of preference shares into equity, Rule 11UA may not apply here. From the above judgment, one can infer that it is very important to identify the basic nature of the securities being issued and the rights attached to it to determine the valuation methodology under Rule 11UA. अब अगर कोई कंपनी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है और उन्हें जनरल मीटिंग अटेंड करने का भी राइट देती है, और उसपे ऐसे सपोज 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने 1000 रुपए में इशू किया और कहा कि ये प्रेफरेंस शेयर आज से 20 साल बाद, 20 साल से ज्यादा आप प्रेफरेंस शेयर्स को रख नहीं सकते, तो आज से 20 साल बाद जाके ये प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में बदल जाएंगे और उसका एक डिफाइंड रेशियो है। अब कुछ लोग इस रेशियो को आज की तारीख में डिफाइन भी नहीं करते, वो कहते हैं उस दिन की जो बुक वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 1000 रुपए में इशू हुआ, जो 900 रुपए का प्रीमियम है, ये प्रेफरेंस शेयर के लिए दिया गया है या फ्यूचर में वो इक्विटी कन्वर्ट होगा, इस चीज पे दिया गया है।
अगर वो फ्यूचर कन्वर्जन के लिए दिया गया है तो आप आज उसे टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक उसको उसके वर्थ असेट मिला नहीं है जिससे आप उसको कंपेयर कर सको. सो सर्टेनली दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज going to have lot of litigation in the near future. Allotment of shares to existing shareholders at less than market value not taxable under section 56(2)(7. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुधीर मेनन का, जहां पे ये कहा गया है कि अगर राइट इशू होता है, यानी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करते हैं और वो जो शेयर्स इशू हुए हैं वो प्रोपोर्शनेट है, मतलब जो राइट दिया गया वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेटली दिया गया है, और उतने में रहते हुए अगर आप शेयर इशू करते हैं, भले ही उसे फेयर मार्केट वैल्यू पे ना करें तो भी आप उसे 56(2)(7 में टैक्स नहीं कर सकते. एंड आई फील दैट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज अ वेरी वेलकम जजमेंट. यहाँ पे फैक्ट्स को देखा गया कि 56(2)(7 का उद्देश्य ये नहीं था कि आप इस टाइप के जेन्युइन ट्रांजैक्शन को भी टैक्स करें. उसका वो था कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश कर रहा है तो उस समय आप उसका वैल्यूएशन 56(2)(7 के हिसाब से करें. लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने रेशियो डिस्टर्ब किया तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में आप फिट नहीं बैठेंगे. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग रेशियो या प्रोपोर्शनेट राइट मिलता है न्यू कैपिटल में परचेज करने का, तो इन दैट केस even if it is not at fair value, still 56(2)(7 should not apply considering this particular judgment. ये यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया ना, ये पूरा डिस्कशन था जब कंपनी शेयर इशू करती है. जस्ट टू क्विकली सम अप एंड देन वी विल मूव अहेड विद द डिफरेंट सेक्शन. अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो उस समय उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक तरीका है नेट असेट मेथड, जो एक्ट में दिया गया है. नेट असेट मेथड निकालते वक्त असेट्स को फेयर वैल्यू पे लाना नहीं है. जब कंपनी शेयर इशू करे तो असेट्स को फेयर वैल्यू पे नहीं लाना है. और दूसरा मेथड जो है वो है डीसीएफ मेथड, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. डीसीएफ मेथड में पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट वाज आल्सो कंसिडर्ड, बट राइट नाउ if the company is following discounted cash flow method for calculation of fair value of shares to be issued, in that case they have to get a certificate from a merchant banker and it will be the responsibility of the assessee to prove that the projection was scientific. एक और केस लो या याद आया, I don't have the citation of it, but उस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी जो मूवीज बनाती थी और उस कंपनी ने प्रॉपर प्रोजेक्शंस करके बहुत सारा फंड रेज किया था जिसमें बहुत बिग शॉट्स ने इन्वेस्टमेंट किया था. एंड 4 साल के बाद जाके वो कंपनी बुरी तरह खत्म हो गई, मतलब उसमें बहुत हेवी लॉसेस हो गए एंड दैट कंपनी क्लोज्ड. नाउ प्रॉब्लम ये हुई कि जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था एट अ हेवी प्रीमियम, उन्हें वो प्रीमियम पे टैक्स का नोटिस आ गया. क्योंकि आपके प्रोजेक्शन 4 साल बाद फेल हो गए, दैट डजंट मीन कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स दैट प्रोजेक्शंस वर इनकरेक्ट. क्योंकि जब वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उसे फ्यूचर नहीं दिखता, लेकिन जब आप उसका असेसमेंट कर रहे हो आप फ्यूचर देख सकते हो. तो आपकी 4 साल बाद की पोजीशन और उसकी 4 साल पहले की पोजीशन सेम नहीं है. अगर इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो रिपोर्ट बनी है, जो प्रोजेक्शंस है और उस प्रोजेक्शन के पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग है या जो उसके अजम्पशन है वो लॉजिकल है, तो आपको डीसीएफ मेथड को एक्सेप्ट करना चाहिए. क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे उस दिन पे ये नहीं मालूम कि प्रोजेक्शन सही होंगे कि नहीं, और अगर उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसने इस बात पे विश्वास रखते हुए इन्वेस्ट किया है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं करेगी वो तो फ्यूचर बताएगा. तो इस केस में आई फील दैट इट्स अ हार्डशिप फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इनटू द कंपनीज व्हिच डू नॉट परफॉर्म वेल based on the projections that was there at the time of making the investment. So it is a request for the department that they should consider the facts and should not blindly add up just because it's a DCF. अभी unfortunately ये भी हो गया है कि एक ऐसा बेसिक आइडिया बन गया है कि DCF मेथड लगाया मतलब कुछ तो गड़बड़ है. DCF मेथड हमेशा गड़बड़ नहीं है, वो फैक्ट्स केस पे रहेगा.
इन्वेस्टर कौन थे, घर वाले लोग थे, फैमिली के लोग थे, कि आउटसाइडर है, व्हाट इज द नॉलेज और व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द आउटसाइडर, डू दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दीज टाइप ऑफ कंपनीज। ये सच बैकग्राउंड देखने के बाद यू मस्ट टेक योर कॉल वेदर टू एक्सेप्ट DCF और टू रिजेक्ट DCF. So this was all about section 56(2)(7), which is in case when company is issuing shares. Now we are going to move ahead with the second part of it, which is more important, जिसमें ज्यादा litigations हैं, ज्यादा amendments भी हैं. वो section पे हम बात करेंगे जब existing shares को बेचता है existing shareholder. Finance Act 2017 ने 2 बड़े अमेंडमेंट किए, बहुत बड़े किए. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की टैक्स प्लानिंग की बैंड बज गई थी जब ये 2 अमेंडमेंट आए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल्स इस तरीके से बना रखे थे कि दे कुड हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ इट, बट बिकॉज ऑफ दीज अमेंडमेंट्स नाउ देयर प्लानिंग फेल्स. ये अमेंडमेंट है क्या, और ये हार्श भी है क्योंकि यहाँ पे डबल टैक्सेशन भी होता है. फाइनेंस एक्ट 2017 ने जो अमेंडमेंट लाया था वो पहला तो ये लाया था कि 56(2)(10) इंट्रोड्यूस किया गया और 56(2)(7) एंड 7A को हटा दिया गया. 7 एंड 7A में वो कवर था कि जब एग्जिस्टिंग कंपनी इंडिविजुअल HUF अपने शेयर्स बेचती है ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो उस समय अगर फेयर वैल्यू पे ना दिया जाए तो आपके हाथ में डिफरेंस अमाउंट टैक्स हो जाएगा. 56(2)(10) भी यही बात कहता है, बस 56(2)(10) का दायरा बहुत बढ़ गया है. अब ये सिर्फ इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड फर्म तक लिमिटेड नहीं है. 56(2)(10) is applicable to all the persons as defined under the Act. This section provides that receipt of money or specified property by any person for inadequate consideration or without consideration from any person shall be subject to tax. तो any person मतलब इसमें सब कोई covered है. एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, एंड इस सेक्शन के वजह से ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डबल टैक्स होता है. तो आपने काफी बार सुना होगा कि 56(2)(10) and 50CA is basically double taxation, which is basically never had been the intent of the department or the government, but unfortunately this is one of the example where the same amount is taxed twice. 50CA, introduction of 50CA to provide that where consideration for transfer of shares of a company other than quoted shares is less than the fair market value of such share, the fair market value as defined as per the rules that we are going to discuss will be deemed to be the full value of consideration for computing income under the head capital gains. तो ये जो सेक्शन है ये अदर इनकम का है, ये वाला जो सेक्शन है वो कैपिटल गेन का है. सबसे पहले हम देखेंगे ये 50CA का थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. Prior to introduction of section 50CA, where shares were sold by the assessee for a consideration which is not in conformity with the fair market value of the shares, there was no mechanism under the Act to substitute the full value of consideration as disclosed by the assessee by any other value for the purpose of computation of capital gain. 50C आने के पहले जो सेक्शन 50C था उसमें सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग कवर था, यानी अगर उस केस में अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स को फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं सेल करता है तो डिपार्टमेंट के पास में कोई ऐसा सेक्शन नहीं था जहां पे उसे टैक्स किया जा सकता था. Section 50C dealt with transfer of capital asset, being land or building or both, which is not applicable in case of shares. To plug this loophole, Section 50CA was introduced. तो 50CA इसलिए आया क्योंकि 50C सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को लगता था और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट या शेयर्स उसमें कवर्ड नहीं थे. तो डिपार्टमेंट वांटेड अ सेक्शन वेयर दे कैन टैक्स दिस एंड फाइनली दे हैड इट इन 2017. 50CA related some important point. पहली तो ये बात, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द असेसीज. इसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, रिलेटेड अनरिलेटेड वाला भी कुछ नहीं है, सब लोगों को ये सेक्शन लगेगा. applies to all the shares whether equity preference, जो भी है सबको लगने वाला है, कोई भी शेयर बेचो. Unquoted shares should be the capital asset. One more important thing here, अगर कोई शेयर्स को इन्वेंट्री के फॉर्म में होल्ड करता है तो उसको ये 50CA नहीं लगेगा, because in that case it will not be a capital gain.
It is not applicable with respect to the gains from transfer of any interest in partnership trust where the property of such entities consists directly or indirectly immovable property. इसका हम एक बाद में एग्जाम्पल लेंगे कि इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म अगर है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा. दिस इज ओनली फॉर द शेयर्स, नॉट फॉर इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप. इट मे कवर इवन सम कोटेड शेयर. अब ये बड़ी प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट के साथ में कि जब वो लिखते हैं कि अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है, तब जब उसको डिफाइन करने जाते हैं ना, उसको डिफाइन नहीं करते और उतना सारा ग्रे एरिया बच जाता है, विच इज ऑलमोस्ट सो डिफिकल्ट टू conclude in a very precise statement कि कहना क्या चाहते हैं. For the purpose of this section, quoted share means the share quoted on any recognized stock exchange with regularity from time to time, where the quotation of such shares is based on current transaction made in the ordinary course of the business. इसका मतलब ये है कि हर quoted share इसमें से excluded है, ऐसा नहीं है. कुछ अगर शेयर्स बीएससी एलएससी पे नहीं लिस्टेड है और कोई दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो देखा जाएगा कि वो रेगुलरली फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रेड हो रहा है कि नहीं, विच इज अगेन अ मैटर ऑफ लिटिगेशन. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, बट कोटेड शेयर भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर हो सकते हैं. Few more things about 50CA. Where unquoted equity shares are contributed by a partner to a firm, the question will arise where the provision of section 50CA will override 45(3) और vice versa. ये दो सेक्शन है जिसके अंदर लिटिगेशन चलने वाला है अभी कि 45(3) 50CA को ओवरराइड करता है कि 50CA 45(3) को ओवरराइड करता है. All those who are interested, they can just go through these two sections and understand the confusions that these sections have created. There is no tolerance bandwidth provided here. इसका मतलब फेयर मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला अगर 2% से भी ज्यादा है तो भी हम फेयर मार्केट वैल्यू पे जाएंगे. वो 5% का जो बैंडविड्थ दिया था इन्होंने टॉलरेंस लिमिट का, वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं दिया है जो 50C में है. In case of sale consideration being less than fair market value, the seller will be taxed under section 50CA and on the grounds that he has not declared true consideration. On the other hand, the buyer will be taxed under section 56(2)(10) on the ground that he has understated the purchase consideration. मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में अगर फेयर वैल्यू यूज नहीं की गई है तो बेचने वाले को भी टैक्स है, खरीदने वाले को भी टैक्स है. इसको हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे so that we can understand what exactly double taxation here is. For example, X transfers his unquoted shares purchased at a cost of rupees 8 lakh to Y for rupees 10 lakh and उसकी fair market value as defined under the act is 50 lakhs. तो अगर X ने Y को 8 लाख के शेयर्स 10 लाख में बेचे और जिसकी कीमत 50 लाख होनी चाहिए थी, तो इस सिचुएशन में जो डिफरेंस है सेल कंसिडरेशन और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का, मतलब ये 40 लाख का जो फर्क है वो 50CA में टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ द सेलर, दैट मींस इन द हैंड्स ऑफ X, एंड वो 56(2)(10) में टैक्स होगा Y के हाथ में. C के हाथ में, X के हाथ में इसीलिए टैक्स होगा क्योंकि उसने सेल कंसिडरेशन अंडरस्टेटेड है, और Y के हाथ में इसलिए टैक्स होगा क्योंकि उसको 50 लाख की चीज 10 लाख में मिल गई, मतलब 40 लाख की अदर इनकम की गेन हो गई. तो अभी की पोजीशन ऐसा है कि इस पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन में सेलर को भी टैक्स लगता है एंड बायर को भी टैक्स लगता है इक्वल अमाउंट पे, बट दो अलग अलग सेक्शन पे. सेलर को लगेगा 50CA पे, बायर को लगेगा 56(2)(10) पे. Now this is the illustration and it is very interesting. I have used very simple numbers and the structure. Practically structure इतना आसान नहीं होता. अब इस चीज में आप देखेंगे कि एक कंपनी थी ABC प्राइवेट लिमिटेड. I sometimes feel कि ये जो सेक्शंस थे इसमें लोगों ने इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, फिर डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत ज्यादा हार्श प्रोविजन लेकर आ गए, इस वजह से अब ये बहुत ज्यादा लिटिगेशन में चल रहा है. ये कहीं कहीं विन विन सिचुएशन पे खत्म होना चाहिए एंड आई गेस मे बी 4 to 5 years will take to reduce these litigation and to bring some more clarity with this particular section. अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से तरीके से लोग प्लानिंग करते थे और दिखता भी नहीं था, बड़े आसानी से काम हो जाता था. ये कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड और ये इस कंपनी की 2010 की बैलेंस शीट है.
इसमें शेयर कैपिटल है मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा पार्टनर है। वैसे भी इंडिया में आधे से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी ही बनती है, 50-50% हस्बैंड वाइफ के पास होता है, वाइफ डजंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर रन इन इंडिया। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का 50-50 लाख का कैपिटल, इसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपए की। अब अगर मिस्टर शर्मा जी चाहते हैं कि ये अपनी लैंड को बेचे, 2016 में इन्हें इस लैंड की अच्छी कीमत मिल रही थी, उसकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई थी 3 करोड़ रुपए, सो ही फेल्ट इट्स अ गुड डील टू सेल द लैंड राइट नाउ। लेकिन शर्मा जी को लगा कि अगर अब ये लैंड बेचेंगे तो 1 करोड़ की लैंड है, उसका इंडेक्सेशन फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करते हैं, 1 करोड़ की लैंड है जिसको वो 3 करोड़ में बेचने वाले हैं, इसका मतलब 2 करोड़ का कैपिटल गेन आएगा। अब उन्हें ऐसा लगा कि अगर 2 करोड़ का गेन आएगा तो गेन के साथ टैक्स भी आएगा, और दूसरी बात वर्मा जी को लगा कि 3 करोड़ के ऊपर हमें स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। तो इन दोनों ने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग द लैंड, यानी ये लैंड डायरेक्टली ना बेचते हुए क्या हम ये कंपनी को ही बेच दें। सो व्हाट दे डिड, मिस्टर शर्मा सोल्ड हिज शेयर्स टू मिस्टर वर्मा एट फेस वैल्यू, आई मीन जितनी कीमत दिख रही है, क्योंकि इस कंपनी में और कोई असेट्स नहीं है, इसलिए इनकी शेयर की कीमत जितनी 2010 में थी वही कीमत 2016 में भी होगी। तो मिस्टर शर्मा ने अपने शेयर्स मिस्टर वर्मा को बेच दिया, मिसेस शर्मा के शेयर्स चले गए मिसेस वर्मा के पास। जैसे ही ये कंपनी की शेयर होल्डिंग बदली, ऑब्वियस सी बात है कि लैंड की ओनरशिप भी यहाँ ट्रांसफर हो गई। Land will remain in the name of ABC Private Limited always because this is a separate legal entity and companies can purchase land in their own name. तो लैंड में कहीं पे भी उसके कागज में ये नहीं आता कि शर्मा के नाम की लैंड है, लैंड हमेशा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की होगी। तो जो भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का ओनर होगा लैंड उसकी होगी। ऐसा 2017 तक चलता रहा। क्यों? क्योंकि रूल 11 यूए ने कह रखा था कि लैंड हो या कोई भी असेट हो उसको बुक वैल्यू पे लेना है। मतलब ऐसा स्पेसिफिकली कहा था कि कंपनी जब भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स अपना दूसरे शेयर होल्डर को बेचना चाहती है तो उसका जो वैल्यूएशन होगा रूल 11 यू के हिसाब से वो बुक वैल्यू पे होगा। अब आप जब खुद कह रहे हैं बुक वैल्यू पे होगा तो जो इन्होंने किया कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के पीछे जो इनका इंटेंट था वो टेक्निकली ये लैंड को सेल करने का था। ये कंपनी बेचने की वजह से इन्होंने अपने 2 करोड़ का कैपिटल गेन बचा लिया और साथ ही साथ इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी बचा ली। और अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता तो ऐसे का ऐसा ही चलता रहता। फिर 4 साल बाद में मिस्टर वर्मा सोचते हम भी बेच देते हैं, फिर वो क्या करते फिर उठा के कंपनी बेच देते। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए इस टाइप के अमेंडमेंट्स आए हैं। Now few very important case laws which helps us to understand कि 50 CA में बदलाव क्यों लाया या 50 CA क्यों आया। बोरुका इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड वर्सेस DCI 2013 का केस है ये, कर्नाटका हाई कोर्ट का। In this case, revenue contended that transaction of sale of shares was a colorable device and virtually an immovable property has been transferred. While rejecting such argument, the High Court observed as follows: the assessee was resorting to tax planning, has taken advantage of the benefit of the law or the loopholes in the law. जब आप ही कह रहे book value पे लो तो this person even willingly cannot do anything otherwise because the rule itself is saying to take it at book value, which has ensured him to this benefit. उस rule की वजह से इसे benefit हुआ है तो अब आप वापस जाके अपने ही rule को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा है after seeing how this loophole has been exploited within the four corners of the law, it is open to the parliament to amend the law plugging the loophole. तो जब कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लूपहोल से लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसमें अमेंडमेंट लाके उसे बंद कर दें। तो बंद करने के चक्कर में 50 CA आ गया। एक और केस है DCIT वर्सेस माया अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू, the assessee sold the actual land and building in the guise of sale of shares and thus the provision of section 50C is applicable. उन्हें ऐसे कहना था कि आप अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन के पीछे जाके देखेंगे तो इन्हें कंपनी बेचने या शेयर्स बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें टेक्निकली लैंड बेचनी थी। लेकिन इस पे ट्राइब्यूनल डिक्लाइन टू अडॉप्ट दिस आर्ग्यूमेंट एंड हेल्ड दैट
No question of invoking the provision of the section 50C of the act, as there is no direct transfer of land or building or both. तो 50C डायरेक्टली कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग बेचने पे लगेगा, उस सेक्शन में कहीं नहीं लिखा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल, तो आप 50C को अप्लाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। सो इन सब जजमेंट्स के चक्कर में, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट था जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि आप इसकी फेयर वैल्यू नहीं ले सकते ट्रांजैक्शन को वैल्यू करने के लिए, क्योंकि जब ये रूल बना होगा तब लेजिस्लेचर ने उस रूल को बनाते वक्त या उस फॉर्मूला बनाते वक्त भी अपना विजडम यूज किया होगा। तो वो रूल जब जो गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर उसके पीछे भी कोई थॉट प्रोसेस था, तो खुद डिपार्टमेंट अपने ही रूल को फिर से चेंज नहीं कर सकता। इस चक्कर में भी रूल 11U में भी अमेंडमेंट आया है। अब ये एक तरीका और लोगों के क्रिएटिव प्लानिंग की देयर इज नो लिमिट। इसका पहला जो हमने एक एग्जांपल देखा था उसमें कंपनी सीधी सीधी लैंड बेच रही थी, लेकिन अगर आप अब ये वाला एग्जांपल देखेंगे, इसमें क्या हुआ है, जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। देयर इज अ कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी बैलेंस शीट है 2010 की, इसमें भी मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा पार्टनर ओनर्स है, लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, लैंड नहीं खरीदी, इस कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट किया है XYZ प्राइवेट लिमिटेड में। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल और पुराने एग्जांपल में फर्क ये है कि उस कंपनी में सीधा सीधा लैंड खरीदा गया है, लेकिन इस कंपनी में एक लेयरिंग करके लैंड खरीदी गई है, मतलब उसमें लैंड थी, इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो 2016 में क्या हुआ, उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। अब टेक्निकली क्या हुआ, कंपनी ने इन्वेस्ट किया एक दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और जब मिस्टर शर्मा ये कंपनी बेचते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा टेक्निकली इस पर्टिकुलर कंपनी के भी इनडायरेक्ट ओनर हो जाते हैं। अब अगर मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट देखूं तो ये ऐसी दिखती है। दिस इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसमें जो शेयर कैपिटल है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड से आया है, और इस कंपनी ने लैंड खरीदी है। इसके अंदर एक लेयर क्रिएट हो गई, खुद कंपनी में लैंड ने इन्वेस्ट नहीं किया, उस कंपनी ने एक और प्राइवेट लिमिटेड बना के उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लैंड इन्वेस्ट किया। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ABC प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स बिके हैं, लेकिन ABC प्राइवेट लिमिटेड के पास में लैंड नहीं है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड के पास में लैंड है, लेकिन इसके शेयर्स बिके नहीं है। लेकिन जब रूल 11UA अमेंड हुआ तो उन्होंने इस चीज को फॉर्चुनेटली ध्यान में रखा, बट उसका एक अनफॉर्चुनेट पार्ट भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इनडायरेक्ट सेल है विथ वन लेयर, एंड दिस हैज आल्सो बीन कवर्ड विथ रूल 11UA अमेंडमेंट। अगर इस टाइप का भी सेल होता है जिसमें जो कंपनी बिक रही है उस कंपनी ने डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी या डायरेक्टली उसमें से नहीं बिक रही है, बट एक और कंपनी बना के उस कंपनी की लैंड से ये इनडायरेक्ट सेल हो रहा है, तो भी रूल 11UA इस कंपनी में अप्लाई होगा। इस केस में यदि शर्मा जी चाहते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को बेचना, दैट मीन्स इसके शेयर्स अगर वो बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें इस कंपनी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और इस कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए उन्हें पहले लैंड को वैल्यू करना पड़ेगा। अभी का रूल 11UA जिसको हम पढ़ेंगे भी आगे, उसमें कहा है कि इफ दिस कंपनी दैट मीन्स ABC प्राइवेट लिमिटेड इज सेलिंग एनी शेयर्स and in the asset side if there are shares of another private limited company, then before valuing the shares of ABC आपको पहले इस प्राइवेट लिमिटेड को वैल्यू करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले लैंड को वैल्यू करना पड़ेगा, फिर इसके शेयर्स वैल्यू होंगे, फिर इसके इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू होंगे, और फिर इसकी कीमत निकलेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो 56(2)(10) में इनके हाथ में, वर्मा जी के हाथ में टैक्स। This was just to explain how a layering is created. Now we'll just read what is rule 11UA after amendment. मतलब जो बुक वैल्यू वाली वैल्यू है वो अब यहाँ नहीं लगेगी। सबसे बुरी चीज इस अमेंडमेंट की मुझे ये लगी कि ये अमेंडमेंट आया था 12 जुलाई 2017 में, लेकिन इसे एप्लीकेबल किया गया 1 अप्रैल 2017। टेक्निकली जो 1 अप्रैल 17 से लेके 11 जुलाई 2017 तक के ट्रांजैक्शन है उन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2017
technically gets covered under this amended rule 11 में। ये रूल और जो पहले रूल देखे इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। वो फर्क ये है कि उसमें था a माइनस एल मल्टीप्लाइड बाय पीवी डिवाइडेड बाय पीई, लेकिन इस केस में बी सी डी ये तीन एलिमेंट जुड़ गए। सिर्फ इतना फर्क हुआ है कि जो असेट्स है उसके थोड़े टुकड़े कर दिए गए। बी सी डी में तीन टाइप ऑफ असेट्स कवर्ड है। इन तीनों टाइप ऑफ असेट्स को अगर आप छोड़ दें तो सारे असेट्स ए में कवर्ड है। ये रूल कहता है कि ए कैटेगरी का असेट, दैट मींस ऑल द असेट्स अदर देन बी सी डी, इनको हम लेंगे बुक वैल्यू पे, और जो बी सी डी है इनको हम लेंगे बी सी डी की जो वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे जो ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। आई रिपीट अगेन, पुराने रूल और नए रूल में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ये चारों जो है ए से लेके डी तक ये चारों असेट्स ही है। बी में जो है वो है ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, सी में जो है वो है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, डी में जो है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तीन कैटेगरी के असेट्स को छोड़ के जितने असेट्स है वो सब के सब ए में आएंगे। अब ये रूल क्या कहता है, ए कैटेगरी के जितने असेट है मतलब अदर देन दीज थ्री असेट, उन सबको आप कैसे लेंगे, बुक वैल्यू पे लेंगे। और बी का क्या करेंगे, बी में क्या लिखा है, ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क को आप रजिस्टर्ड वैल्यू की कीमत निकाल के लेकर आइए। सी में आप क्या लेंगे, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच इज अगेन गिवन अंडर रूल। डी में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर्स आप सेल कर रहे हैं और उसके असेट साइड में ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, इमूवेबल प्रॉपर्टी या शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी है, तो आपको उस कंपनी का वैल्यूएशन करते वक्त बी सी डी कैटेगरी को पहले उसकी फेयर वैल्यू पे लाना है, बचे हुए एसेट्स को आप बुक वैल्यू पे ले सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी कीमत निकालेंगे। यानी जो हमारा पुराना केस है उसमें पहले वाले केस में आपको लैंड को रीवैल्यू करना पड़ता था। दूसरा केस जहां पे एक लेयर क्रिएट हुई थी वहां पे पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वैल्यू करना है। ये वैल्यूएशन रूल्स दिए गए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन अंडर रूल 11UA। बाकी लाइबिलिटी एंड ऑल रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। आई जस्ट क्विकली मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये रूल तो ठीक है, बट इस रूल को अप्लाई करना इज सच अ चैलेंजिंग जॉब इन फ्यू सर्कमस्टांसेस। लेट्स अंडरस्टैंड दोस चैलेंजेस। सबसे पहली चीज, इस रूल को अप्लाई करने के लिए वैल्यूएशन डेट क्या होगी, यानी अगर मैंने 15 फरवरी 2019 में शेयर्स बेचे हैं तो मैं जो बैलेंस शीट लूंगी इसका कैलकुलेशन करने के लिए वो कब की बैलेंस शीट होगी। इस रूल कहता है इन केस ऑफ सेक्शन 56(2)(10) fair market value is to be determined basis audited financial as on the date of transaction. Now this is so difficult. Closing the financials and audit thereof alongside the transaction closing date is practically an impossible task. यानी अगर कोई कंपनी 15 मई को शेयर कुछ सेल कर रही है, यानी कंपनी भी नहीं सेल कर रही है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर कंपनी के शेयर सेल करना चाहते हैं, किसी ने 15 मई में किया, किसी ने 15 फरवरी में किया, so how can we expect the company to every time close and audit their financial statement just because they want to value the transaction that is taking place between two different persons? Has nothing to do with the company per se. क्योंकि कंपनी के जब शेयर्स एक बार इशू हो गए उसके बाद जब कंपनी के शेयर्स बिकते हैं तो वो कंपनी के लिए एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो कंपनी के शेयर होल्डर और प्रोस्पेक्टिव बायर का एक ट्रांजैक्शन है। कंपनी सिर्फ अपने शेयर होल्डर रजिस्टर में उसे अपडेट करती है। इस ट्रांजैक्शन में कंपनी के हाथ में कोई पैसा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी हर उस तारीख पे जाके अपने फाइनेंशियल्स को ऑडिट करवाए, which is a very difficult task, particularly when the transfer is happening on the instance of the shareholder. तो कंपनी शेयर होल्डर के केस में बार बार नहीं कर सकती। सेक्शन 56(2)(7)(d) में एक्चुअली इसका थोड़ा रिलैक्सेशन है। While determining the fair market value as per 56(2)(7)(d, there is a categorical mention that if the valuation financials are not as on the date of valuation, तो आप लास्ट ड्रॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रेफर कर सकते हैं।
56 to 7B के लिए उस दिन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लास्ट ऑडिटेड ले लो, चलेगा। लेकिन ये चीज आपने 56 to 10 के लिए नहीं दी, विच इज वेरी इनकरेक्ट एंड विच इज वेरी हार्डशिप फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको भी ऑडिट करना है, तो एक ही कंपनी को बीच में 3-3 बार 4-4 बार ऑडिट नहीं किया जा सकता। ऑन ग्राउंड चैलेंजेस में एक और, वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द एंटिटी इज अ चैलेंज। अब आप एक ऐसी सिचुएशन लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी ए, वो कंपनी ए ने BCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये रूल कहता है कि अगर आपको कंपनी ए के शेयर्स की कीमत निकालनी है तो उसके पहले आपको BCD की भी कीमत निकालनी पड़ेगी। अब इंटरेस्टिंगली अगर BCD में से, क्योंकि BCD की कीमत कैसे निकलेगी, यही रूल लगा के निकलेगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी if investing into another private limited company, then in order to sell the shares of that A company, you have to first value BCD also, and BCD is required to be valued using the same rule, मतलब इसी रूल के हिसाब से उनकी भी कीमत निकलेगी। अब अगर BCD ने खुद 10-10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हो तो भले ही ऐसे कम केसेस होंगे, लेकिन if this is the case where there is approximately 50-60 private limited companies group and one company invested into three companies in turn invested into another 10 companies, then in order to value the original company, पहले वो 10 कंपनी को वैल्यू करो, उसके बाद वो 3 कंपनी को वैल्यू करो, उसके बाद हमारी एक कंपनी के पास में। तो in this case it is going to create a real challenge, क्योंकि अगर ये between the year sale है तो आप चाहते हैं कि वो 10 कंपनियां, जितनी भी कंपनी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगी, उन सब के उस पर्टिकुलर डेट के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो ताकि हम वैल्यूएशन कर सकें। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दिस इज प्रैक्टिकली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड देयर नीड्स a good amendment into this particular section to make it logical in the lines of section 56 to 70। जिस तरीके से वहां पे कहा गया है कि लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो, अगर आपको ज्यादा डाउट है तो आप एक सर्टिफिकेट ले लो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि जो सेल डेट है एंड जो लास्ट ऑडिटेड है उसके बीच में मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, दैट इज मोर देन एनफ टू कंसीडर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। सो देयर नीड्स सम अमेंडमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके बाद एक और चैलेंज, अगर क्रॉस होल्डिंग हुई तो कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्ट करके रखा है और कंपनी बी के भी शेयर्स कंपनी ए में, तो अगर अब वो कंपनी इस कंपनी के शेयर्स बेचना चाहती है तो दोनों के आपस में शेयर होल्डिंग को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के इस कंपनी की कीमत निकाली जाएगी, क्योंकि कंपनी ए की कीमत कंपनी बी पे डिपेंड करती है क्योंकि उसमें उसका इन्वेस्टमेंट है, और कंपनी बी की कीमत कंपनी ए में डिपेंड करती है क्योंकि उन दोनों का आपस में इन्वेस्टमेंट है। ये सिचुएशन के लिए भी डिपार्टमेंट ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, बट इसका लॉजिकल आंसर यही है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फॉरेन सब्सिडरी हुई तो क्या होगा, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर किसी कंपनी ने किसी फॉरेन सब्सिडरी में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो हम चाहते हैं वो फॉरेन सब्सिडरी भी उस तारीख पे अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए। ऊपर से वहां पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रही तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे वैल्यू करेंगे, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, which is again a big question and a big challenge also. So we need amendment for foreign subsidiaries as well. एक और क्वेश्चन, अगर मैंने कोई प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करके रखा है तो अगर मैं उसको फेयर वैल्यू पे लाना चाहूं तो मैं उसकी प्री टैक्स पोजीशन लूं कि पोस्ट टैक्स। अभी भले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक के जो केसेस हम देखेंगे कि अगर कंपनी में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखी हूँ जिसकी आज की कीमत 100 रुपए है, तो जब अगर मुझे वो पैसे कभी फ्यूचर में मिले तो भी 100 का 100 तो मिलेंगे नहीं, उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। तो टेक्निकली व्हेन आई टेक इट इनटू माय अकाउंट आई शुड कंसिडर ओनली द पोस्ट टैक्स वैल्यू, otherwise it will result into double taxation. But there is nothing presently into the act or the rules, so if we go with this logic then probably we may end up with a litigation. But what is logical is to consider a post tax situation, otherwise it will result into double taxation. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसमें डिपार्टमेंट शायद खुद बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि अगर 56 to 10 या 7A जो पहले 2017 तक था,
फ्रेश बोनस, राइट इशू या बायबैक शेयर्स में इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी? इसके लिए डिपार्टमेंट सर्कुलर लेकर आया था, लेकिन फिर उन्होंने वही सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया। वो सर्कुलर था बहुत लॉजिकल कि जो इंटेंट है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का या जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था इसके लिए फाइनेंस एक्ट में, उसका इंटेंशन बहुत क्लियर था कि ये एक एंटी अब्यूज प्रोविजंस है और ये जेन्युइन केसेस में नहीं लगने चाहिए। तो राइट इशू, बायबैक, ये सब चीजों पे ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं अप्लाई होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने अपना सर्कुलर विड्रॉ कर लिया ये कहते हुए कि क्योंकि ये डिस्कशन अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, सो वी डोंट वांट टू कॉन्फ्लिक्ट विद इट, एंड इस सर्कुलर को विड्रॉ इस तरीके से किया कि ऐसा माना जाए कि ऐसा कभी कभी इशू हुआ ही नहीं था, मतलब हमने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं, इस तरीके से इस सर्कुलर को रिमूव कर दिया गया। सो प्रेजेंटली देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ बोनस एंड राइट इश्यूज। राइट इश्यूज के लिए हमारे पास सुधीर मेनन का केस है, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट सो सेटल्ड, but it's very, very logical, and I hope that there comes a clarification and amendment for this particular situation from the department. अब last चीज, then we will open for question answer session, कि अभी तक कौन सा इसका लूप होल है, मतलब इतने सारे अमेंडमेंट लाने के बाद भी the law breakers are always, or law evaders are always and always going to be ahead of the lawmakers. हमारे पास हर चीज का इलाज है हमारे पास, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस कम्युनिटी, नथिंग टू डू विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, अब ये लास्ट केस देख रहे हैं जो आज भी डिपार्टमेंट टैक्स नहीं कर सकता। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ये, इसमें शर्मा है, मिसेस शर्मा, सब कुछ सेम है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ये फर्क है। पहले वाले एग्जाम्पल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हुआ था, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये पार्टनरशिप फर्म में हो रहा है। सो क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर शर्मा जी अपने शेयर्स वर्मा जी को बेचते हैं तो क्या इस पार्टनरशिप फर्म को भी फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा क्या? पार्टनरशिप फर्म में ऑफ कोर्स आपने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा कि पार्टनरशिप फर्म के पास में लैंड है, यानी पूरी कहानी ऐसी है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके 2 शेयर होल्डर है, शर्मा जी एंड मिसेस शर्मा, और इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट किया है और इस पार्टनरशिप फर्म ने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया। अब ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स का हो रहा है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके शेयर्स बेचते वक्त हमें इस कंपनी के शेयर्स को रीवैल्यू करना है रूल 11 के हिसाब से। अभी अभी हमने रूल 11 देखा कि वहां पे वो 3 कैटेगरी ऑफ असेट, मतलब ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को छोड़ दें तो बाकी सारे असेट्स को बुक वैल्यू पे लेना है, ऐसा लिखा है इनकम टैक्स एक्ट के रूल 11UA में। नाउ द क्वेश्चन इज, does this investment in partnership firm fall under shares and securities or it falls under the category A where it is to be taken at book value? Investment in partnership firm कोई shares and securities में नहीं आता। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म को रीवैल्यू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर रूल 11UA। इसका मतलब भले ही इस लैंड की कीमत 3 करोड़ है, भले ही इसके इन्वेस्टमेंट की कीमत अब 3 करोड़ हो गई है, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स को बेचते वक्त इसको 3 करोड़ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मा जी बड़े सेफली अपने पूरे इन्वेस्टमेंट्स फेस वैल्यू पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू एज पर रूल 11UA, आई मीन टू से वैल्यू रूल 11UA के हिसाब से इतनी ही आएगी। इसको रीवैल्यू करने के लिए किसी ने भी हमसे नहीं कहा है, जो कहा नहीं है वो हम करेंगे नहीं। सो दिस इज स्टिल अनएड्रेस्ड। इसके पीछे एक बड़ा ही टेक्निकल सा कारण है। पहली बात, क्या शेयर्स में पार्टनरशिप शेयर आता है क्या? भले ही बोलचाल की भाषा में हम शेयर बोलते हैं, बट टेक्निकली शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इनकम टैक्स एक्ट में शेयर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। पार्टनरशिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसे शेयर वर्ड नहीं कहते, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। Interest in partnership is not supposed to be revalued for the purpose of selling the shares of a private limited company. And one very important and technical reason behind not getting it covered is a private limited company is a separate legal entity, but a partnership firm is not a separate legal entity.
अगर मैं पार्टनरशिप फर्म को रीवैल्यू करूं तो टेक्निकली इट विल रिजल्ट इनटू डबल टैक्सेशन व्हिच इज नेवर हैड बीन द इंटेंट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो अभी टेक्निकल कारण, और इसके बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के केसेस चल रहे हैं. हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 200 करोड़ का केस है जहां पे इसी बात पे अटका हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म की असेट को रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है. सो प्रेजेंटली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ the most used tool till there comes an amendment, and bringing an amendment to such a critical situation is a real challenge within the department as well. I hope that I have covered mostly everything which relates to these particular sections. Now we can open it for question answers. If anybody having any questions, they can put their questions in the question tab. Oh. Can somebody moderate these questions? क्योंकि इसमें बहुत सारे questions है. We can just cover the quick one which particularly relate to this particular section. Okay, the last point which you pointed out, will that be applicable to LLP as well? LLP and partnership को एक तरीके से डील किया जाएगा. LLP को भी required नहीं, क्योंकि उसके भी शेयर को शेयर नहीं कहते. We don't say it's an LLP share, so it's only limited to company shares. So LLP will also come into the tax planning part. Yes, I will share the presentation. हाउ टू वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स. पहले तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रीमियम आता है तो वो प्रीमियम के लिए भी बहुत क्लैरिटी नहीं है. ये ओपन मार्केट में, इसका मतलब ये बहुत इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि आप अपने उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आपने जो प्रीमियम चार्ज किया है. हाउ यू जस्टिफाई योर असेसिंग ऑफिसर, बेसिकली दैट विल कम इनटू द क्वेश्चन. (56) to 7B not applicable irrespective of the amount invested. I didn't get the question. I mean, या वैल्यू इज टू बी टेकन एट द नेट बेसिस. मतलब TDS एडवांस टैक्स अगर है तो उसे हम असेट्स नहीं कंसिडर करेंगे और उसको प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन के साथ नेट ऑफ करेंगे. दैट इज करेक्टली हाईलाइटेड. एक्चुअली प्रीमियम चार्ज टू नॉन रेसिडेंट ना, ये जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो वो फेमा के रूल्स में कवर हो जाता है, तो वहां पे वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है. तो इनकम टैक्स के 56 to 7B में उसको कवर नहीं किया गया है. लेकिन अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में तो वो ऑलरेडी फेमा के रूल्स में उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है. तो आई गेस दैट विल प्रोबेबली गेट कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू फेमा, या RBI के थ्रू जब वो आएगा उस समय उस पर डिस्कशन शायद वहां होता है, उसके रूल्स चेक करने पड़ेंगे. एज पर दिस सेक्शन अगर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी को तो आप प्रीमियम पे यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, बिकॉज ये स्पेसिफिकली रेसिडेंट के लिए है. इस सेक्शन में यू कैन नॉट क्वेश्चन इट. इफ इट गोज टू सम अदर सेक्शन दैट नीड टू बी चेक्ड. Intangible assets have not been covered. So if it is about goodwill, firstly, if it is a self-generated goodwill, it will not come into the books of accounts, and hence it is not a question to be getting into it. Because goodwill, if it is purchased, in that case, you have to take it whatever is there in the books of accounts. Goodwill falls under category A asset. That means it has to be taken at the book value. So you cannot revalue it. Technically, goodwill is an asset which is not having any value, but if you prove that this goodwill is having value, then probably you may be able to take premium based on it.
Yes, if you are transferring share from person A to person B, in that case, DCF method is not allowed. And in the net asset value method, a CA certificate is very much valid. You don't need a DCF, a merchant banker report in case net asset value method, which is the only method that you can follow when existing shareholder is transferring the shares. Actually, there one question that is here is कि when company issues the shares, that time the valuation rule is different. When the person is receiving the shares, then the valuation rules are different. Now, if there are two different valuation rules, then for the same transaction, how it will apply? So there have been a judgment that in case the company is issuing the share, then 56(2)(10) will not apply because it is not a receipt. Receipt will come only if there is an existing asset. अगर कोई शेयर अभी अलॉट हो रहे हैं तो उसको ये नहीं कहेंगे कि देयर इज अ कैपिटल असेट ट्रांसफर. अगर कंपनी नया शेयर इशू कर रही है तो उसे फेयर वैल्यू पे नहीं करना है, दैट विल बी ऑन द बुक वैल्यू ओनली. टू 2001 की वैल्यूएशन indexation का इसमें provision नहीं है. They have asked to take the fair value. That means when we talk about fair value, we generally refer to the stamp duty value because that is basically considered as acceptable at both the end. But if there is a variation between the market value and the stamp duty value, then you have to take it from the registered valuer. Indexation doesn't come into picture while valuing the company shares. I guess there are many questions. 56(2)(10) basically has been made applicable for all the type of transaction. There is no clarification so far from the department that whether it will apply to right shares. But considering Sudhir Menon cases, we can very much say that if right shares are issued in proportion to the existing shareholder proportionately, then 56(2)(10) may not apply. But again, it is a matter of litigation. There is just one judgment for this. You can take the basis of that judgment. Logically, it sounds correct. But since there is no clarification, we cannot blindly think that wo shayad lage hi na. If new shares are issued at a premium from a new company, then if DCF method is there, and if it is logically driven, there is a scientific calculation based on it, then you can definitely issue it at a premium. But if there is no scientific calculation based on which the DCF was adopted, then be open for the litigation. Because it will be the duty of the assessee to prove that the projections were based on some logical assumptions. Yes, the question from Mr. Fardhan that in case the company is issuing share, DCF method can be followed along with net asset method. But if it is the existing shares being transferred from an existing shareholder to some other prospective buyer, in that case, DCF method cannot be followed. There is no clarity on the treatment of MAT as well. So presently, we don't know how the MAT will be treated if the normal taxes are not applicable for the company. Technically, MAT is an asset basically, and it should be considered as an asset as it has a future economic value. It can get set up against my tax liability against my normal provision. So MAT को asset मान के उसे minus करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. This is my personal opinion, but department has not issued any clarification, and there is no judgment for the same as well. All right, if stamp duty value, इसमें relaxation नहीं दिया गया है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि if market value is less than the stamp duty value, then what to do?
They have just mentioned stamp duty value, and there is no flexibility into it. What will be the situation if the market value, and we have a valuation report where the stamp duty value is high and the market value is less. The present rule 11 UA doesn't give you that flexibility. So it will now depend upon the assessing officer, and it is certainly a matter of litigation. They should have mentioned that valuation report should also be acceptable if it is coming from a registered valuer. If shares are allotted to foreign investors, then in that case, since the companies are allotting the shares, the DCF method and book value method both are allowed. And if again you're following DCF method, then you have to have a report from merchant banker. So if merchant banker से report हो जाने से भी कुछ नहीं होगा, you need to have a scientific basis or based on which the report was designed, because the projections are given by the management, and the management responsibility it will be to prove that this is based on some logical assumption and they believed it to be true as on that particular date at least, and they have to prove it. And if assessing officer comes with any suggestions, modifications, then the same has to be mutually discussed and sorted out. Indexation has not been talked anywhere here. It is always and always a stamp duty value which is going to be considered. So indexation would have been there if probably land was sold, but presently since land has not been sold, it is indirect sale through sale of shares. So land पे indexation नहीं आएगा. जो normally shares पे आता है that will come, but it will not come in the land. I don't know whether RBI can question within NAV and DCF. In my personal opinion, they should not question. Again, people at RBI basically do understand about all the valuation things, because having foreign investments is not something very new. We had been receiving a lot of investments, and when RBI allows this, that time they have a complete team to verify what the amount is coming into it. Is it not worth the amount that they are investing? So I guess they do accept DCF, but I don't know whether they can reject DCF or not, but certainly they can question it. So we need to have it. ऐसा नहीं होगा कि जो भी DCF हम लोग दे रहे हैं वो RBI accept करेगा, ये तो certainly नहीं होगा. So whatever calculations we are giving, RBI can also cross question those calculations, and if they feel correct, then only I guess they will allow that foreign direct investments coming into the country. Calculation of NAV can very much be done by a chartered accountant. Chartered accountant certificate is very much valid. It is just restricted for the DCF method, which is to be given only by a merchant banker. So practicing chartered accountant can give a certificate for NAV method. CA certificate, I guess, is not mandatory. I will read the section again. I guess they have used the word may. If the word used is may, then I guess it is not mandatory, because it is just a mechanical calculation. The rule has very much been given and anybody can calculate it. So a CA certificate may not be mandatorily required in case it's a NAV and the existing shareholder is selling the shares. प्रेफरेंस शेयर्स का तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में इतनी वैरायटी है और उसको इतने तरीके से डिजाइन किया जा सकता है कि ऑल ऑफ देम विल हैव ऑल सॉर्ट ऑफ litigations, और कितना अमेंडमेंट लाएगा डिपार्टमेंट, दैट इज आल्सो वी आर नॉट वेरी क्लियर ऑफ प्रेजेंटली. जो मेथड दिया गया है उस मेथड के अलावा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई, यानी एनएवी भी जैसा का जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा ही अप्लाई करना है, और ये पर्टिकुलर डीसीएफ भी है वो जैसा मर्चेंट बैंकर हमें रिपोर्ट बना के देगा वैसा. तो दैट इज प्रेजेंटली अ ग्रे एरिया, एंड इसलिए वो थोड़ा लिटिगेशन में भी है.
जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, if your assessee is using DCF method and getting a merchant banker report, you have to ensure that the projection that has been provided from the management to the merchant banker for calculation should be scientific, logical, and must have some perfect assumptions or logical assumption based on which they can later defend it in case things don't go as per planned. Since there is one more session, I guess we need to conclude here. All those queries, I'll just try and get it, and if possible, I'll just try and address and will be shared via mail. I hope I could do justice with the valuable time of all the participants here. And it was really a pleasure to connect again with all the batches whom I have taught in NADT. You all are being missed. Do visit NADT as soon as possible after this lockdown. We conclude this session. Virag sir, are you there? Yes, I am very much here. Thank you so much for wonderful presentation. One participants want to share something. I will unmute Yes. him. Dipesh, you can unmute yourself. Dipesh, you are there? I think there is some technical error. He is not able to unmute him. But he want to say big thank you to you. Hello. Yes, Dipesh. Yeah. Okay. Hi, Premlata. Very frankly, when I first heard your name, okay, from Virag for this webinar, I asked Virag, who is this female? I mean, she's not really found on any of the social media sites for her valuable knowledge. Okay, and who is it really? Are we getting a speaker who's worth our time or not? And believe me, I am very happy to be proved wrong here. You were definitely worth every minute which we spent on this webinar. Your experience of teaching at NADT, your depth of the knowledge, you taking us right from the provisions. I mean, when there was 1256.2.7 was there till now getting to 56.2.10, and you understanding the ground nuances, also understanding what is actually happening at the ground level and what are the difficulties. In fact, even giving a hint to the businessman as to how you can basically tax plan yourself is commendable. I appreciate the knowledge you have, and really thanks for coming on. Virag, again, thanks to you as well for getting her on board. Thank you so much, Dipesh. This really means a lot to me because I was very nervous. I have generally not taken session for chartered accountants, and that too from Mumbai. So actually, I never had such type of technical discussion also on such type of platform. Thank you, Virag sir, for giving this opportunity, and I'm so grateful that I could make sense to all this, all those professionals who have joined us. And I could make sense that that definitely makes my day. Thank you so much, Dipesh, for this comments. Yeah, thank you. So thank you all the participants for interactive participation. And ma'am has a question, answered all the questions, and you can connect her on LinkedIn. LinkedIn profile or the link is already there on screen, and contact details also are there, so you can connect there as well, and we can have a more discussion on the WhatsApp group as well. So with this, we are logging off from this webinar. Thank you so much all, and thank you so much once again, Premlata madam. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye.